Vande Mataram, everyone. Independence Day. So, do you know that before when our country was under the East India Company, so that at that time it was not allowed to host our flag also. Yes. So there are so many freedom fighters. They have hosted the flag, but they have hosted in hidedly. Yes, it was not allowed to host the flag in open areas. But when we got the freedom, but that was not an easy task, and we have to give the respect to our nation. Yes. So in the today, so I would like to request the student of the class nursery to come forward and host the flag, and our director sir, Mr. Surendra Soniji, and our HM sir, Mr. Ritik Sarmaji. So please come forward and so please. Request the student of the class nursery to come forward and host the flag. And our director sir, Mr. Surendra Soliji, and our agent sir, Mr. Ritik Sarma. So, sir, please. Bande! Bande! Attention! Group by the left, kick march! March! By the left, kick march! March! Group! Group! About! Now, I would like to request our HM sir to come on the stage and address the program. So, sir, please. Vande Mataram, everyone. A very good morning to respected director sir, dear leading director, managing director, respected teachers, and all my dear students. Today, first of all, I want to wish you all a very happy Independence Day. Today, we all here to celebrate the freedom of our
great nation. We remember the sacrifice of our brave freedom fighters, those who have given us a precious gift of independence. My dear students, true love for the nation is not showing only by waving the national flag, but it is shown by the respecting others, your teachers, your elders, as well as being honest, helping others, and working hard every day. Let us now promise to be responsible for our city, for our country, and let's make sure that we do for our India. Thank you. Vande Mataram. Have a nice day. Thank you, sir, to enhance our knowledge about Independence Day. performance is coming from the class 5th, the dance. Yes? संदेश आते हैं हमें तड़पाते
वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। आप लोगों की छुट्टी मंजूरी हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। For the class students, so everyone give a big round of applause for them. आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी हमें उपहार है ये नहीं है, इसके लिए हमारी यात्रा करनी पड़ी है। आजादी की यात्रा, इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी।
1919 जलियांवाला बाग। आज हमारे बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो दूसरा हमारा विरोध करता है। हम जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं चाहेंगे तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। Soldiers, fire! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे, हम आबादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख लाल कर गया है। इस कांड में कितने मासूमों की गोली चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उठे। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत के इस जंगल से विदेशी तरीकों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1938 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आ रही। Stop this! Simon Commission! नहीं मानता, I said stop this! लानती, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अंग्रेजी सरकार के कफन लड़ने का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मार्च की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 का अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुल्जिम भगत सिंह, मुल्जिम राजगुरु, मुल्जिम सुखदेव को
दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। पत्थर की हाल तेरा मैं चाहूंगा सिंगर करने की कोई बल पत्थर मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गाना सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ मेरे दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वो नर परस्त का दिल है जो मेरे बचपन के जज्बे को ताकत देता है। बेटा माँ आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है, जिसको रोई तो मैंने तकलीफ होनी आ सोच तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तो क्रांतिकारी की नाम है और तो शहीद होगी माँ। भगत तू इतने छोटे उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? माँ देखी है जिससे मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार वरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार देने का समय आ गया है। भगत सिंह तुम्हारे को आखिरी ख्वाहिश हमारे हाथ खो दिए जाएगी। हम एक दूसरे से बने रहना चाहते हैं, सिंह हाथ खो दिए और एक नौजवान के मन में आजादी की नई और लोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे सैनिकों की कुर्बानी जो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।